Hello everyone. So today we will see clavicle. So clavicle is also referred as collarbone, which is also called beauty bone. Okay. So I have written it medially sternum plus first rib cartilage and laterally acromion process. First of all, before studying about the features and parts, let's see the diagram because diagram will clear you more. Okay, so let's see. I have drawn the diagram. Here it is. This one is superior surface of clavicle and this one is inferior surface of clavicle. Okay, so and this is posterior margin and this is interior margin. This is also posterior margin and interior margin. Okay, I have drawn here the muscles and give the color, give different types of color. So the color indication is here that red color define muscles origin, yellow color indicate muscle insertion where muscles have are attached or inserted, and the green color give you indication about ligament attachment. So let's see. This yellow color is trapezius muscles, this one is deltoid muscles, and this one is sternoclenoid mastoid muscles, or this fourth one is pectoralis major muscles. Okay, and all of you know that this is lateral end and this is medial end. Okay, and this space is called shaft. I will tell you more in detail, but let's clear the diagram first. Okay, and this side lateral side is also known as acromial end, and this one is sternal end. Okay, this is trapezoid ligament, this one. Okay, और this one this यहाँ पे कॉनॉइड लिगामेंट, और ये सब क्लैविक्स मसल्स है, और ये आपका कॉस्टोक्लैविकुलर लिगामेंट हो गया, और ये स्टर्नोहायोइड मसल्स. ओके, तो ये मैंने आपको डायग्राम के थ्रू समझाया. अब मैं आपको डिटेल्स में रिटन के थ्रू समझाती हूँ. ओके, लेट्स सी. So come to features. This is only bone lying horizontally. ये एक ऐसा bone है जो लाई करता है horizontally. बाकी और bone के बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे, लेकिन एक only bone है जो लाई करता है horizontally. No medullary cavity, इसमें कोई medullary cavity present नहीं होता है, और membrocartilaginous ossification है, या membrane और cartilage के बीच ossified इसमें होता है, इसलिए ossification membrocartilaginous है. May be pierced through cutaneous nerve, which is known as intermediate supraclavicular nerve. Subcutaneous throughout is extent, पूरे extent में ये subcutaneous है, मतलब cutaneous related to muscles. Okay, only long bone with two primary center. ये एक ऐसा bone है जिसका two primary center होता है. Okay, हम लोग पढ़ चुके हैं उसके एंड के बारे में डायग्राम के थ्रू. फर्स्ट टू ऑसिफाई बिटवीन 5-6 of IUL. ओके, लास्ट टू ऑसिफाई इन 25 years. तो पार्ट्स दे आर मेनली 2 ends plus 1 shaft. So first go through end and medial sternal end. ओके, तो medial sternal end में जो होता है वो क्वाड्रिलेटरल विथ क्लैविकुलर नोच होता है ऑफ मैनुब्रियम स्टर्ने. ये आप लोग देख सकते हैं उसके शेप के बारे में कि वो कैसा है, वो बता रहा है यहाँ पे. एंड लेटरल एक्रोमियल एंड इज फ्लैटन विथ एक्रोमियम प्रोसेस मार्जिन, और लेटरल एंड में आपका होता है एक्रोमियम प्रोसेस का मार्जिन, वो इसमें शो किया गया है. ओके, और सेफ्ट होता है वो कर्व शेप में होता है. मीडियल 2/3 राउंड और एंड कन्वेक्स फॉरवर्ड होता है, और लेटरली 1/3 होता है फ्लैटन होता है, कनकेव होता है, और इन्फीरियर सरफेस सब क्लैवियन ग्रुप इन मिडिल थर्ड. तो लेट्स सी, सेफ्ट आपका कर्व्ड है.
ओके, ये सेफ्ट है। तो इस सुपीरियर सरफेस में देखेंगे तो आपका एक ये है कन्वेक्स, और इसमें देखेंगे तो ये कनकेव है। ओके, मीडियली से लेकर 2/3 में राउंड और कन्वेक्स है, और लेटरली से देखा जाए तो फ्लैटन और कनकेव है। देख सकते हैं आप, कनकेव और लेटरली है। ओके, so let's move. So I have cleared about the lateral end and medial end. Lateral end flatten above downward or oval facet articulate with medial margin of acromion and form acroclavicular joint। ठीक है, तो lateral और जो acromial end रहता है जो कि यहाँ पे है, ठीक है, ये आपका कैसा है, फ्लैटेंड है और डाउनवर्ड है, ओवल फेसेस है, और ये जो जॉइंट फॉर्म करता है उसको एक्रोक्लेविकुलर जॉइंट बोलते हैं। लेटरल एंड गिवन अटैचमेंट टू फाइब्रस कैप्सूल ऑफ एक्रोक्लेविकुलर जॉइंट, और जो लेटरल एंड है वो अटैचमेंट करता है एक्रोक्लेविकुलर जॉइंट जो कि फाइब्रस कैप्सूल है। मीडियल स्टर्नल एंड, तो सैडल स्टेप का है मीडियल स्टर्नल स्टेप, आर्टिकुलेट द सरफेस विथ क्लाविकुलर नोच ऑफ मैनोब्रम स्टर्नी, और ये फॉर्म करता है क्या, स्टर्नो क्लाविकुलर जॉइंट, और गिव्स अटैचमेंट टू फाइब्रस कैप्सूल आर्टिकुलर डिस्क एंड इंटर क्लाविकुलर लिगामेंट। सो लेट्स मूव ऑन टू सैफ्ट। सैफ्ट कैसा शेप का होता है, फ्लैटेंड होता है, और लेटरली 1/3 से लेटरली 1/3, इसका 2 सरफेस 2 बॉर्डर होता है। सरफेस क्या होता है, सुपीरियर इन्फीरियर होता है। ओके, सरफेस सुपीरियर इन्फीरियर होता है, एक सुपीरियर सरफेस होता है, एक इन्फीरियर सरफेस होता है। ओके, और फिर सब क्यूटेनियस बिटवीन द अटैचमेंट ऑफ डेलेटॉइड मसल्स, डेलेटॉइड और ट्रेपेजियस के बीच देखिए आपका डेलेटॉइड और ट्रेपेजियस के बीच ये सब क्यूटेनियस होता है। ओके, और ये जो है कॉन्सी ट्यूबरक्यूल, और ये ट्रेपेजॉइड रीज, ये जो होता है उसके बारे में इसका पोजीशन बताया, नियर पोस्टीरियर बॉर्डर एट जंक्शन ऑफ लैटरल एंड मीडियल 3/4 ऑफ क्लाविकल। ठीक है, पोस्टीरियर बॉर्डर से जंक्शन के बीच होता है लैटरल और मीडियल का 3/4 में। ओके, ये लैटरल और मीडियल का 3/4 में होता है, वो उसका पोजीशन बताया। ट्रेपेजॉइड रीज एक्सटेंड फॉरवर्ड एंड लेटरली फॉर्म कॉनॉइड ट्यूबरकल। ठीक है, और ये देखिए ट्रेपेजॉइड लिगामेंट, उसके बारे में लोकेशन बताया है, और ये दोनों मिलके अटैचमेंट टू कोरोक्लेविकुलर लिगामेंट, और ये दोनों मिलके अटैचमेंट करता है कोरोक्लेविकुलर लिगामेंट का। हो गया, आई थिंक कॉस्टोक्लेविकुलर, सॉरी। बॉर्डर होता है एंटीरियर पोस्टीरियर होता है। देखिए ये एंटीरियर हो गया, ये पोस्टीरियर हो गया, इसमें भी सेम दोनों सुपीरियर सरफेस और इन्फीरियर सरफेस का इंटीरियर मार्जिन और पोस्टीरियर मार्जिन मैंने डायग्राम के थ्रू आपको समझाया है। ओके, सो इंटीरियर कनकेव फॉरवर्ड डेलेटॉइड ट्यूबरिकल में भी प्रेजेंट, मतलब कनकेव प्रेजेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, मतलब वो डिपेंड करता है आप किस पोजीशन में उसको रखे हो। और ये ऑरिजिन देता है डेलेटॉइड मसल्स का। सही बात है, ये डेलेटॉइड मसल्स का ऑरिजिन देता है। ठीक, और ये जो होता है पोस्टीरियर एंड जो होता है वो कॉन्वेक्स फॉरवर्ड होता है और इंसर्शन टू ट्रेपेजियस मसल। ये देखिए ट्रेपेजियस मसल्स को इंसर्शन करने में मदद करता है। ओके, तो मीडियल 2/3 ऑफ सिलिंड्रिकल हैज़ 4 सरफेस होता है, और वो 4 सरफेस क्या क्या है, सरफेस सुपीरियर और सुपीरियर इन्फीरियर के बारे में पहले हम लोग पढ़ेंगे। सुपीरियर ऑरिजिन देता है क्लैविकुलर हेड ऑफ स्टर्नम, मतलब स्टर्नो क्लेडॉइड मैस्टॉइड का। ये देखिए ये है स्टर्नो, उसको वो ऑरिजिन देता है। इन्फीरियर अटैचमेंट करता है कॉस्टोक्लेविकुलर जॉइंट का, लिगामेंट टू ओवल इम्प्रेशन, इंसर्शन ऑफ सब क्लेविकस मसल्स इनटू सब क्लेवियन ग्रोथ। ठीक है, अटैचमेंट ऑफ सब क्लेविपेक्टोरल फेसिका टू मार्जिन ऑफ सब क्लेवियन ग्रूव,
presence of nutrient foramen on lateral end and of subclavian group। और ये एंटीरियर पोस्टीरियर के बारे में पढ़ेंगे तो कन्वेक्स फॉरवर्ड होता है। ऑरिजिन टू क्लेविकुलर हेड ऑफ पेक्टोरलिस मेजर मसल्स एंटीरियर सरफेस जो होता है इसका वो क्या बोलते हैं इंसर्शन करता है पेक्टोरलिस मेजर मसल्स का। ओके एंड origin to sternohyoid muscles lateral part forms anterior boundary of cervix axillary canal or trunk of brachial plexus third part of subclavian artery। so ये था। मैंने आपको लास्ट पार्ट थोड़ा सही से नहीं समझाया है क्योंकि ये जो पार्ट है वो ऑल टोटल आपके डायग्राम में आ जाता है और जब तक आप डायग्राम नहीं समझोगे खुद से नहीं बनाओगे तब तक ये आपका क्लियर नहीं हो पाएगा। सो डायग्राम को आप फ़ोटो खींच सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो और उससे समझ सकते हो। ओके, थैंक यू।